Hello students, my name is Dr. Vivagna. I belong from Dehradun. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college, universities in Dehradun. Today, I will teach you the chapter market in microeconomics. I have already uploaded more than 120 videos in my YouTube channel, and I am working hard for class 9, 10th, 11th, 12th and those who are preparing for competitive examination. Today students, I will teach you what is the difference between monopoly, perfect competition, monopolistic competition, oligopoly and monopsony. This is the very important topic. You must know what is the basic difference between all these market structures. First of all, I will tell you what is perfect competition. In perfect competition, first of all, I will tell you one. First point is that number of sellers. So you write large number of sellers here. In perfect competition is what? Large number of sellers. Large number of sellers. Now in monopoly, if you talk about the monopoly means only one seller. One seller. अभी हम सिर्फ सेलर की बात करें. We are talking about only sellers. In perfect competition there is a large number of sellers. In monopoly there is only one seller. In monopolistic competition, fairly large number of sellers. Fairly large number of sellers. बेचने वाले बहुत कम होते हैं. Fairly large number of sellers. Fairly large number of sellers. अब आइए इन ओलिगोपोली. अगर हम ओलिगोपोली की बात करें, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और हम इसकी बात करेंगे फ्यू सेलर्स, बहुत कम सेलर होते हैं. फ्यू सेलर्स, फ्यू जरूर लगाना है. अ फ्यू सेलर्स. ठीक है. ओलिगोपोली में क्या होगा स्टूडेंट? अ फ्यू सेलर्स होंगे. अब आइए मोनोप्सनी. मोनोप्सनी में क्या होंगे? मोनोप्सनी की बात होगी. मोनोप्सनी में मैनी सेलर्स होंगे. मैनी सेलर्स. So in case of perfect competition, large number of sellers. Monopoly means mono means one, poly means seller, only one seller. If you talk about the monopolistic competition, fairly large number of sellers. Oligopoly means a few seller, and monopsony means many seller. The first differentiate I have explained about what sellers. Now in second, I write here in what? Sellers. Now in second, buyers. How many buyers? Now we talk about the buyers. So buyers means large number of buyers. Large number of buyers in perfect competition. Large number of buyers. These are the basic properties of perfect competitions and monopoly and monopolistic, oligopoly and monopsony competition. Large number of buyers. Large number of buyers. Large number of buyers. Large number of buyers. मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. ओलिगोपोली में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, खरीदार होते हैं. बट मोनोप्सनी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वन बायर. ये बड़े ध्यान से सुनेगा, वन बायर. ये पॉइंट बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, वन बायर. सिर्फ मोनोप्सनी कंपटीशन एक ऐसा है, सिर्फ वन बायर होता है, और बाकी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हर जगह होते हैं. परफेक्ट कंपटीशन में भी, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ओलिगोपोली में. बट इसमें क्या होगा? मोनोप्सनी में क्या होगा? ओनली वन बायर. नाउ थर्ड पॉइंट मीन्स कैसा प्रोडक्ट बेचते हैं. व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे विल सेल. ये बेचते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट हुज शेप, साइज, कलर आर सेम. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट आर द होमोजीनियस प्रोडक्ट हुज शेप, साइज, कलर आर सेम. नाउ कम टू द पॉइंट. व्हाट they also sell the what? Homogeneous product whose shape, size, color are same, who are very close substitute to each other. And here monopolistic competition, differentiated product, very important. Different homogeneous and differentiated product are those product whose shape, size, color are different but and packaging are different, but they are close substitute to each other. वो आपस में क्या होंगे? क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे. मैंने बोल दिया मोनोपोलिस्टिक डिफरेंशिएट बेचते हैं, मोनोपोली होमोजीनियस बेचते हैं. अब आइए ओलिगोपोली कैसे बेचते हैं. ओलिगोपोली का जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस भी होता है और डिफरेंशिएटेड भी होता है. होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड भी होता है.
होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। अब अगर हम मोनोप्सनी की बात करें, मोनोप्सनी में क्या होता है, इसका होमोजीनियस होता है, सिंपल होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन 3 पॉइंट, large number of sell, large number of buyers, homogeneous or differentiated product. I have already explained you in perfect competition and all these market structure. Now come to the fourth point. Fourth point means market में कितना knowledge किसको है। तो इसमें क्या है, large number perfect knowledge about the market, perfect knowledge about what market लिख रहा हूँ यहाँ पे, सब अच्छे ध्यान रखिएगा, market, perfect knowledge about the market। ये होमोजीनियस मतलब प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या बायर्स है, यहाँ पे क्या सेलर बायर्स प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या लिखा परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। क्या मोनोपोली को मार्केट की नॉलेज होती है, आपने ये बताना, या सम नॉलेज। क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को होती है, इसमें तो आपने रखना है सम नॉलेज। यहाँ पे भी क्या होती है, सम नॉलेज अबाउट द मार्केट। यहाँ पे भी लिखना आपने सम नॉलेज अबाउट द मार्केट, और यहाँ पे भी आपने लिखना है सम नॉलेज अबाउट द मार्केट, तो स्टूडेंट यू सी दैट आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी 4 पॉइंट्स इन इट। नाउ 5th पॉइंट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लिखेंगे फ्री एंट्री, कोई भी आ सकता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अगर हम बात करें मोनोपोली की, क्लोज एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्लोज्ड एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो मोनोपोलिस्टिक में भी हम कह सकते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है छोड़ के। अगर हम ओलिगोपोली में भी करें, इसमें भी क्या होती है, क्लोज एंट्री होती है। क्लोज एंट्री, वाई देयर इज क्लोज एंट्री, बिकॉज लार्ज इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, पेटेंट राइट एंड कॉपीराइट इज नीडेड। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन वाई देयर इज ए क्लोज एंट्री इन मार्केट चैप्टर in my YouTube channel, where I have explained why there is a close entry of monopoly and oligopoly firms. Now in मोनोप्सोनी में क्या होती है, क्लोज एंट्री होती है। क्या होती है, क्लोज्ड एंट्री होती है। So I have already explained what, how many points? I have already explained 5 points. Now students, I am telling you some other points in it, which is very important. Now 5 points I have already explained you. What is, now I am telling you about what 6 point. तो now student 6 point about perfect competition means ये क्या होते हैं, perfect competition क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। कौन होते हैं, ये प्राइस टेकर होते हैं। मोनोपोली प्राइस मेकर, ये खुद बनाते हैं प्राइस, दे आर प्राइस मेकर, दे हिमसेल्फ मेक द प्राइस बिकॉज दे sell the whole quantity of the commodity himself. Now if you talk about this, they are the also price maker and price maker. ये भी क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं, ये भी प्राइस मेकर होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं। ये खुद only there is only one firm that is price taker, that is perfect competition. All these are the price maker. Now selling cost, what I say, 7th point very important. सेलिंग कॉस्ट, आई एम राइटिंग हियर सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है, सेलिंग कॉस्ट की आवश्यकता है। परफेक्ट कंपटीशन को सेलिंग कॉस्ट की हम क्या कहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में डज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन, ईच एंड एवरी पर्सन विल नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर्ड सेलिंग कॉस्ट। नाउ मोनोपोली में भी सेलिंग कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट।
मोनोपोली में भी क्या होता है कि हम ये समझ लें कि मोनोपोली में भी क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको, एडवर्टाइजमेंट पर्सन सेलिंग की, दे डोंट नीड एनी एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सन सेलिंग। नाउ इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यस सेलिंग कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, इसमें बहुत जरूरी है भाई, बिना सेलिंग कॉस्ट के सेलिंग कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, सेलिंग कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। नाउ इन दैट केस ओलिगोपोली सेलिंग कॉस्ट की आवश्यकता, इसमें सेलिंग कॉस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, हम कहेंगे यस एग्जिस्ट, इसमें पड़ती है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कह दीजिए आप, इसे पड़ेगी नो नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोली में नॉट एग्जिस्ट, ओलिगोपोली में एग्जिस्ट करेगी, मोनोपोली में नॉट एग्जिस्ट। अब आइए एट्थ पॉइंट, एट्थ पॉइंट व्हाट इज द एट्थ पॉइंट? एट्थ पॉइंट स्टूडेंट्स का शेप कैसा है परफेक्ट कंपटीशन का? तो देखिए इसका शेप देखेंगे परफेक्टली इलास्टिक है, ये है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट डिमांड कर्व, ये प्राइस है ये आउटपुट है, ठीक है। आ जाइए मोनोपोली में, मोनोपोली में नेगेटिवली स्लोप्ड है बट लेस इलास्टिक, नेगेटिव स्लोप बट लेस इलास्टिक, बट लेस इलास्टिक। अब लेस इलास्टिक कैसे देखें, बट ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, चलो थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ उसे, इसका कैसे लेस इलास्टिक है, देखिए यहाँ पे AR ये रहा और AMR ये रहा, थोड़ा सा इधर की तरफ फ्लैटर है ये, तो ये मैंने AR और ये MR बना दिया, ये इसका क्या बना दिया, आउटपुट बना दिया। अब देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कैसा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नेगेटिव स्लोप बट मोर इलास्टिक, नेगेटिव स्लोप है और इलास्टिक कैसा ज़्यादा है, नेगेटिव स्लोप बट मोर इलास्टिक। अब देखिए इसका कैसा डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा ये AR ये MR, यहाँ पे AR MR हो गया और आउटपुट हो गया। आपने देखा ये थोड़ा लेस इलास्टिक है, मोनोपोली में लेस इलास्टिक है, इसका क्या मोर इलास्टिक है, क्या है मोर इलास्टिक, किसका ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब आइए ओलिगोपोली का, ओलिगोपोली का शेप होता है किंग्ड डिमांड कर्व, ये देखिए ED ग्रेटर देन 1 ED लेस देन 1, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है प्राइस कांस्टेंट होता है, इसका शेप जो होगा किंग्ड डिमांड कर्व होगा, किंग्ड डिमांड कर्व। अब आइए मोनोप्सनी का हम कहेंगे नेगेटिव स्लोप होगा, कैसा स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। तो आपने देखा इसका डायग्राम देख लिया आपने, इसका कैसा डायग्राम है, इसका आपने देखा प्राइस क्या कांस्टेंट है, इसमें देखा लेस इलास्टिक है, इसमें थोड़ा देखा मोर इलास्टिक है, इसका शेप कैसा है किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली का। तो इस तरीके से मैंने आपको स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू टुडे 8 पॉइंट्स इन इट। ओके नाउ now students come to the point 9 point. what is the 9 point of it? अगर हम एवरेज रेवेन्यू देखें तो इसमें देखेंगे AR इज इक्वल टू व्हाट MR, अगर हम इसमें देखेंगे AR इज मोर देन MR, अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे AR इज मोर देन MR, और अगर हम ओलिगोपोली और मोनोप्सनी की बात करेंगे तो इसमें भी AR इज मोर देन MR, AR इज मोर देन MR, इसमें भी AR इज मोर देन MR, ठीक है। अब आइए 10th पॉइंट, ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। नाउ अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट, तो इसमें कौन सा प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, इसमें कौन सा प्रॉफिट होगा, इसमें होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसे होगा, नॉर्मल होगा, और इसमें कैसे होगा एबनॉर्मल, और इसमें भी कैसे होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए मैंने बता दिया जो परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होगा, मोनोपोली में एबनॉर्मल होगा, इसमें भी मोनोपोलिस्टिक में क्या होगा, नॉर्मल होगा, और ओलिगोपोली में एबनॉर्मल होगा, और मोनोपोली में भी एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये मैंने करा दिया।
अब देखिए, मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल कोई नहीं होता, नो एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका आज तक कोई प्रोडक्ट ऐसा कोई नहीं इसका प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इसका कोई एग्जाम्पल होता नहीं। अब आइए मोनोपोली। मोनोपोली का एग्जाम्पल हो गया रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आइए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जाम्पल कैसे हो गए। मोनोपोलिस्टिक का हम लिखे टीवी, टीवी में लिख लें सैमसंग हो गया, सैमसंग, सोनी, फिलिप्स। टूथपेस्ट आ जाएंगे आप, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। टूथपेस्ट के आप 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोलगेट दे सकते हैं, पेप्सोडेंट दे सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। टीवी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और आप इसमें एग्जाम्पल शूज़ दे सकते हैं। वुडलैंड के लोग शूज़ पहनते हैं, बाटा के शूज़ पहनते हैं, ये एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। ओलिगोपोली के एग्जाम्पल बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, और बेबी फूड्स बनाते हैं वो इसमें आ जाते हैं। बेबी फूड्स हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फ्यूड ऑटोमोबाइल में जीएम मोटर्स हो गया, BMW का कार होगी, मारुति सुजुकी होगी, होंडाई कार होगी, ये इसमें एग्जांपल आएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एग्जांपल ओलिगोपोली में आएंगे। अब आएंगे मोनोपोली। मोनोपोली में आएगा डिफेंस प्रोडक्ट, डिफेंस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने टुडे आई हैव एक्सप्लेन 11 प्रॉपर्टीज, 11 डिफरेंस बिटवीन perfect competition, monopoly competition, monopolistic competition, and oligopoly and monopoly. This is a very important question for board examination and also those who are preparing for competitive examination. Thanks, Dr. Vibhavna.